प्योरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस तो नहीं है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं फिर, है ना। तो तुम्हें क्या याद करना है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में एक तो स्टेटमेंट याद करना है that the volume of liquid or a fluid passing through an ideal fluid passing through a pipe of non-uniform cross section is constant throughout the pipe. लिखा स्टेटमेंट लिख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंटिन्यूटी volume of liquid passing through volume of an ideal liquid volume of an ideal liquid passing through a pipe of non-uniform cross section, passing through a pipe of non-uniform cross section remains the same remains the same throughout the pipe. Again, it is based on conservation of it's based on conservation of mass. It's based on conservation of mass. अब बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन है या वो भी हट गया है। है? वॉल्यूम कैसे सेम रहता है? अभी तो किया है। नहीं मतलब वॉल्यूम और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो वेलोसिटी था। ओ अच्छा। V is the velocity, A is the area of cross section. तो A into V becomes volume flowing per unit time. So volume per unit time remains constant. Speed different है। So suppose there is an ideal fluid passing through a pipe of non-uniform cross section. लिक्विड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। दिस इज 1, दिस इज 2। ऐसा ले लेते हैं। दिस हाइट से इज h2, this height is h1. Here area of cross section a1 है, speed v1 है, pressure is p1. Here area of cross section a2, pressure is p2, speed is v2. So an ideal fluid passes through a pipe of non-uniform cross section as shown in the figure. I'm not deriving the formula. I'll give the derivation of this. Write up दे दूंगा तुम्हें। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इट हैज थ्री काइंड ऑफ एनर्जीज, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज काइनेटिक एनर्जी, another is potential energy, gravitational potential energy you can say, and third one is pressure energy. Because of pressure acting on the liquid, it is moving. Here the pressure is P2. So according to the statement of Bernoulli's theorem, if an ideal fluid is passing or moving through a pipe of non-uniform cross section, then the sum of its kinetic energy, potential energy, and pressure energy remains constant throughout the pipe. इसका स्टेटमेंट लिखो।
according to according to Bernoulli's theorem, according to Bernoulli's theorem, if an ideal fluid moving in streamline flow, an ideal fluid flowing in streamline flow, flowing in a streamline flow through a pipe of non-uniform cross section, through a pipe of non-uniform cross section, then flowing through a pipe of non-uniform cross section, then some of its kinetic energy, some of its kinetic energy, potential energy, and pressure energy, and pressure energy remains the same, remains the same throughout the pipe. So law of continuity was based on conservation of mass, and Bernoulli's principle is based on conservation of energy. मतलब लिक्विड की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है. जैसे लिक्विड यहाँ से मूव करके वहां जा रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी? ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो उसकी हाइट ज्यादा हो गई. स्पीड कम हो गई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, बट द टोटल सम ऑफ द थ्री रिमेन्स द सेम. So as such, kinetic energy per unit volume is half rho v square. अगर नॉर्मल, तुम्हें मालूम है हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास सेम होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा. यस, मास बाय वॉल्यूम वुड बी रो, डेंसिटी. सो काइनेटिक एनर्जी per unit volume is half rho v square. Potential energy per unit volume rho g h, and pressure energy होता है p. Pressure energy per unit volume is p. तो जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, it is mathematically like this. The sum of three energies remains the same throughout the cross section of the pipe. और else इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. At cross section 1, pressure is P1, speed is V1, height is H1. This will be equal to pressure at cross section 2, energy at cross section 2, and the height H2. So we can use this way also. हाँ, तो हाफ रो भी रो कर दिया ना. डेंसिटी तो हमने माना ना आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है. So this is basically Bernoulli's theorem. There are many applications of Bernoulli's theorem. One is Magnus effect.
दैट इज स्विंग ऑफ द बॉल इन एयर। तुमने क्रिकेट में कभी देखा होगा कि बॉल को प्लेयर रगड़ते रहते हैं, एक साइड से शाइनिंग कर देते, एक साइड से रफ कर देते हैं। डू यू वॉच क्रिकेट? नो। अब तो विमेन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीते, अब तो देख लिया करो जस्ट टू ऑनर देम। कभी कभी मैं भी ऐसे नहीं देखता। तो क्या होता है कि दिस इज अ बॉल। दो दो चीजें होती है, एक तो स्विंग, वो एयर में होता है, मतलब कोई चीज सीधी जा रही है तो थोड़ा पाथ अपना चेंज कर लेगी, तो उसको बोलते हैं स्विंग। एक होता है स्पिन। स्पिन होता है आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट चेंजेस द पाथ, दैट्स कॉल्ड स्पिन। स्विंग हमेशा एयर में होता है, हवाई हवा में। जैसे कोई चीज स्ट्रेट तुम्हारी तरफ आ रही है, फिर उसने थोड़ा सा पाथ चेंज कर दिया, दैट्स कॉल्ड स्विंग। सो व्हाट दे डू इन स्विंग, बॉल को एक साइड से बिल्कुल रफ कर देते हैं और दूसरी साइड से शाइन कर देते हैं, बिल्कुल स्मूथ यू कैन से ऑन वन साइड एंड रफ ऑन द अदर साइड। तो अब क्या होगा, सपोज ये बॉल है, एक साइड इसका रफ है, एक साइड स्मूथ है। हम इसको थ्रो भी कर रहे हैं स्पीड वी से आगे की तरफ, एट द सेम टाइम उसको हम स्पिन भी कर रहे हैं, मतलब घुमा के फेंक रहे हैं बॉल को। तो बॉल की अपनी एंगुलर स्पीड भी है, बॉल ऐसे घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो लेट्स कंसिडर 2 पॉइंट्स, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ये बेसिकली टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू, बॉल को हमने आगे फेंका और उसको थोड़ा स्पिन भी किया, मतलब घुमाया भी, घुमा के बॉल को आगे फेंका। तो पी पॉइंट पे क्या होगा, नेट वेलोसिटी वी पॉइंट पे थोड़ी बढ़ जाएगी, बिकॉज बॉल भी स्विंग कर रहा है, बॉल भी मूव कर रहा है। लेट मी कॉल इट वी प्लस डेल्टा वी। दूसरी साइड में क्या होगा, क्यू पे, क्यू पे ये वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट है, लीनियर वेलोसिटी आगे है, तो नेट वेलोसिटी वी क्यू पे कितनी हो जाएगी, वी माइनस डेल्टा वी लिख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा वी जो है बेसिकली इट इज ओमेगा आर। आर यू कैन से इज द रेडियस ऑफ द बॉल, ओमेगा इज जिससे तुम उसको घुमा रहे हो, घुमा के फेंका हमने उसको आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉल के दो साइड में वेलोसिटी चेंज हो गई। वैसे भी अगर हमने एक साइड को रफ कर दिया, एक साइड को स्मूथ कर दिया, जो साइड रफ है वहां पे स्पीड थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा ना उधर, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर थ्रोइंग द बॉल इन द एयर। तो जिस साइड में फ्रिक्शन है वहां पे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, रफ होने की वजह से शाइनिंग वहां पे उसकी स्पीड नॉर्मल रहेगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। अब लुक एट द बर्नौलीज थ्योरम। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो टर्म है तो नेग्लिजिबल होगी, बिकॉज बॉल के जो नीचे की दोनों साइड की हाइट है ग्राउंड से वो तो सेम है, बॉल तो हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो उसको अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या, हमें क्या समझ में आ रहा है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया। तो जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड वाइस वर्सा। जहां प्रेशर कम होगा वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज टोटल एनर्जी हैज टू रिमेन द कांस्टेंट। तो किस साइड में, बॉल के किस साइड में स्पीड ज्यादा है, इस साइड में, ऊपर वाली साइड में, पी के साइड में, क्यू के साइड में स्पीड कम है। तो प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर वुड बी लेस और मोर, pressure would be less, and this side pressure would be more because of this equation, conservation of energy principle। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो बॉल विल नॉट टेक द स्ट्रेट लाइन पाथ, बिकॉज इस ये टॉप व्यू है, इस साइड से प्रेशर ज्यादा है, तो बॉल सीधी पाथ में ना जाके ऐसे स्विंग कर जाएगी हवा में। दिस इज द टॉप व्यू। यहाँ पे सपोज बॉलर है, यहाँ पे स्टम्प्स हैं, तो बॉल स्विंग करेगी एयर में,
तो ये आउट स्विंग हो गया. So this is based on Bernoulli's theorem. It's called Magnus effect. Swing of ball in air is called Magnus effect. अब इसको तुम डायग्राम बनाओ, फिर इसको इसको लिखते हैं थोड़ी सी स्टोरी. ये आएगा 2 या 3 मार्क का. क्या हुआ दिव्या? कुछ तो गड़बड़ है. समझ में नहीं आया? ये आपने डायग्राम तब का बनाया जब आपने बॉल को स्पिन करके फेंका। हाँ, बॉल को घुमा के फेंका है. एट द सेम टाइम जब उसको रफ और स्मूथ करते हो तब भी इफेक्ट आता है. अगर तुम सपोज घुमा के भी फेंक रहे हो और स्मूथ और वो भी कर दिया तब और डबल इफेक्ट हो जाएगा. अगर आपने स्पिन करके नहीं फेंका। तो देन यू हैव दो. फिर मैग्नेस इफेक्ट नहीं होगा अंटिल अनलेस यू हैव रफ स्मूथ साइड. या तो फिर इस साइड को तुम रफ कर दो. इस साइड को रफ करो, स्पीड कम हो गई. हम्म। इस साइड को स्मूथ कर दो. उसी वे में फेंकना है तुम्हें. एक साइड को रफ रखना है, एक साइड को स्मूथ रखना है. और रफ और स्मूथ कर दिया साथ में वो घुमा के भी फेंका है तो फिर डबल इफेक्ट आएगा. सी इट्स ऑल साइंस, यू नो. लाइक ज्वेलिन थ्रो जो होता है उसमें भी तो पूरा फिजिक्स लगता है. तुम्हें मालूम है 45 डिग्रीज पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज पे जाता है. तो लेकिन जब पर्सन एट अ हाइट थ्रोज इट तो उस हाइट पे एंगल 43 या 42 डिग्री हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू वन साइड वन हैज टू थ्रो दैट एट पर्टिकुलर एंगल टू गेट द मैक्सिमम रेंज. हमारे स्कूल में हमसे शॉर्ट पुट करवाते हैं तो उसमें भी हमें बोलते हैं कि आप 45 डिग्री एंगल बना के। हाँ, लेकिन तुम लोग तो थोड़ा हाइट से फेंकोगे तो 45 से थोड़ा कम हो जाना चाहिए. ग्राउंड से 45 है तो ऊपर आगे 42 43. बट जब फेंकते समय थोड़ी याद रहता है. वो तो बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू इट. तो शॉर्ट पुट का वेट पता है कितना होता है? हमें 5 केजी की बॉल देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा खुद का वजन इतना नहीं होगा. तुम कितना फेंकती हो? मेरा सबसे लंबा गया था 11.2 मीटर। क्या बात है, तुम्हारे फिजिक्स में अप्लाई की होगी इसका मतलब है ना. इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट द साइंस बिहाइंड इट. नहीं. चलो, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. वरना तुम नाराज हो जाओगी. सो अब लिखें. नंदिनी बना लिया डायग्राम? लिखते हैं चलो अब. when when a ball is thrown when a ball is thrown in the air by providing it spin motion also by providing it by spin motion also spin motion also then net velocity at one side of the ball net velocity at one side of the ball will increase. ब्रैकेट में लिख लो vp इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v. vp इक्वल टू v प्लस डेल्टा v. And on the other side and on the on the other side लिख लो. And on the other side net speed decreases ब्रैकेट में वी क्यू इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी. वी क्यू इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी. आगे लिखो. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल then you need to write this equation. P plus half rho v square equal to constant. P plus half rho v square equal to constant according to Bernoulli's principle. Pressure on side P
will be less compared to pressure on the side Q. That is, PP is less than PQ. जहाँ पे स्पीड ज्यादा वहाँ पे प्रेशर कम हो गया. Due to which, due to which the ball will not move in a straight line path, due to which ball will not move in a straight line path, but it will swing in the air. But it will swing in the air. It is called Magnus effect. तो ये आ सकता है कि एक्सप्लेन मैग्नेस इफेक्ट. एक दूसरा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, तो खुद से भी कर सकते हो. लाइक इफ यू टेक ए पीस ऑफ पेपर, अभी एक पेपर लेके इसको और यहाँ से तुम ब्लो द एयर, एयर ब्लो करो, you'll find that this end of the paper will moves up. ऐसा क्यों होगा? जब तुम, जब यहाँ पे तो एयर रेस्ट पर है, यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. बिलो द पेपर, दिस इज द पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर लेस हो जाएगा ऊपर. एज अ रिजल्ट दिस पेपर विल मूव अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन. लाइक इफ आई, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, इफ आई ब्लो एयर, तो अभी नहीं कर रहा, थोड़ा सा आ रहा है ना ऊपर. दिस इज व्हाट इट इज. दूसरे जो विलेजेस वगैरह में थैच रूफ होते हैं ना, घास फूस के जो घर बने होते हैं, तो जनरली होता है क्या है कि व्हेन स्टॉर्म वगैरह आ रहा होता है, तो दे शट द डोर विंडोज एंड ऑल. तो क्या होगा? यहाँ पे वी स्पीड ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाए। कम हो जाएगा. तो एज ए रिजल्ट प्रेशर वुड बी लेस. दिस प्रेशर वुड बी लेस, बट यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है, सब कुछ विंडो वगैरह बंद कर दिए हैं, तो इनसाइड द हट pressure would be more. As a result, the roof of the hut will move away. छप्पर उड़ जाते हैं. दैट इज द रीजन. दिस अगेन बेस्ड ऑन, तो मतलब एडवाइजेबल ये है कि ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड ऑल पूरा बंद मत करो, कुछ थोड़ा सा ओपनिंग रखो, सो दैट प्रेशर डिफरेंस इज नॉट मच. The roof blows away. It can also be explained on the basis of Bernoulli's principle. क्या लिखोगे इसमें? अपने मन से लिखो, काव्या, नंदिनी, सब लोग, शिविका. बर्नौली का नाम आना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए उसका, लाइक मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन करो. ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स.
क्या लिखा? दिव्या सुनाओ। Since velocity of wind outside is higher compared to the velocity inside, consequently pressure outside is lower and pressure तो क्या in. हट वट कुछ नहीं लिखा ही नहीं तुमने? कुछ भी नहीं लिखा उसमें? टीचर को कैसे पता लगेगा क्या है? मैंने एक हट बनाया तो हट बनाने से थोड़ी टीचर बोलेगा हट, है। मार्क्स नहीं देगा। लिखो पूरा ना प्रॉपर। इन विलेजेस और लाइक समथिंग लाइक दैट यू राइट टू राइट ना। तुम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? फिर आपको हट की बेसिस पे चाहिए या फिर ऐसी चाहिए? नहीं नहीं, वो हट के बेसिस पे तो चाहिए। ब्लोइंग ऑफ रूफ्स इन थैज्ड हट्स, और पूरा लिखो ना। या तो मेंशन कर दो, एज शोन इन द फिगर देयर इज अ हट व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, the speed of wind is high at the top of the hut or the roof. As a result, pressure is less by Bernoulli's theorem, P plus half rho v square. Whereas the speed of air is zero, almost zero inside the hut, the pressure is more. तो पूरा लिखो, जो समझ में आ रहा है उसको लिखना है बस। हो गया? काव्य बताना, सुनाओ। During heavy wind, the velocity of the wind outside the hut is more as compared to the inside. According to the Bernoulli's principle, P plus half rho V square equals to constant. So pressure outside will be less as compared to प्रेशर inside. अबव द रूफ। Pressure above the roof of the hut will be more as compared to the inside, as windows are नो नो, closed. उल्टा बोला है तुमने। Pressure outside will be less. Pressure above प्रेशर the अबव द रूफ विल बी लेस। roof will be less as compared to the inside. As हम्म। windows are closed, the pressure difference is prominent. हम्म। So the roof of the hut will be blown off due to higher pressure inside. राइट, शिविका सुनाओ। है during a storm in villages with thatched roofs or a hut. If हम्म। all windows and doors are closed, a pressure difference is created due to high pressure on the lower area and low pressure on the upper area of the roof. बर्नोलिज Hence, नाराज हो गया तुमसे तो, उसका नाम ही नहीं आया इसमें। नहीं उसके आगे लिखा है hence due अच्छा, to Bernoulli's theorem. फिर तो मैंने तुमने तो वो पहले लिख दिया है। इसको तो यूज तो पहले ही कर लिया ना बर्नोलिस को। तुमने बर्नोलिस पहले यूज कर लिया, बाद में उसका नाम ले रही हो। नाराज है तुमसे भी पहले लिख दो। जो प्रेशर ठीक है। डिफरेंस आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ बर्नोलिस थ्योरम, है ना? उसको पहले लिख हाँ देना। ठीक है। ठीक है। नंदनी आओ मैदान में, सुनाओ। The roof will blow off when there is harsh wind due to Bernoulli's principle. The velocity outside is more, which decreases air कोई वेलोसिटी pressure. बर्नोलिस की वजह से नहीं है। अरे नहीं सर, मतलब वो पूरा पहले मैंने लिख दिया फिर। वेलोसिटी ऑफ एयर तो वैसे स्टॉर्म की वजह से है ना। अच्छा सर, बर्नौली की वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा। the velocity outside is more, which हम्म। decreases pressure and air inside the roof हम्म। is, sorry, which decreases pressure and air inside the roof has less velocity, so pressure is increased. Due to this pressure difference, the roof blows off. राइट। दिव्या सुनाओ। In villages, when a storm approaches, the roof often blows away. This is because velocity of wind is higher compared to the velocity of wind outside is higher compared to the velocity of wind inside. Consequently, by Bernoulli's theorem, P plus half rho v square is equal to constant. So pressure outside is lower and pressure inside is higher. Due to this high pressure difference, the roof blows away. ओके, तुमने क्या लिखा? नेट टोटल एनर्जी तो सेम है ऊपर नीचे।
हम्म वो इतनी ज्यादा मत कहानी लिखो. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, P plus half rho V square. So pressure outside is less and inside is more. So the pressure difference blows away. अब यहाँ पे तो नेगेटिव इफेक्ट था ना, नेगेटिव वे में एक्सप्लेन किया, बट इसका एक फायदा भी है. तुमने देखा, कभी नोटिस किया इस बात को कि जब प्लेन बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो वो तो लिफ्ट हो जाता है हवा में. कार और हाई स्पीड से लिफ्ट मूव करती तो लिफ्ट होती नहीं है, वो तो फ्लाई करती नहीं. ऐसा क्यों है? इफ ए कार मूव्स विद स्पीड ऑफ से 100 किलोमीटर पर आवर, तो कभी हवा में उड़ती देखी तुम्हें गाड़ी? उस कार के नीचे इतनी हवा नहीं है ना। तो वो तो प्लेन में भी नीचे से हवा नहीं आ रही है. लेकिन प्लेन है तो हवा में ही। नहीं, हवा में जब जब वो रनवे पे रन करता है, तो इसका रीजन होता है एरोफाइल स्ट्रक्चर ऑफ विंग. जो विंग्स बनते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि वो लोहे की शीट ली हो तो ठोक ठाक के विंग बना दिया, वो तैयार हो गया प्लेन. इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी इन दैट. उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एरोफॉइल स्ट्रक्चर होता है. विंग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, जब प्लेन आगे मूव कर रहा होता है तो द एयर स्ट्रीम ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स. तो अब ऊपर वाली स्ट्रीम है विंग के, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी ज्यादा हो जाती है, सॉरी. And the speed of the airstream which blows inside the wing, moves inside the wing, is less. As a result of Bernoulli's theorem, half rho v square, because thickness तो विंग की बहुत ज्यादा नहीं है तो h को हम इंडिपेंड हटा सकते हैं. तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा. बिलो द विंग प्रेशर वुड बी हाई, above the wing pressure would be low. So this will cause a pressure difference in the upward direction. And because it's pressure difference, there'll be net upthrust, which would be area of the wing into the net pressure. And this net force upward will lift the plane. So lift जो plane करता है, that is because of this, aerofoil structure of the wings. That is the reason. तो विंग का डिजाइन इस तरह किया जाता है ताकि द स्ट्रीम ऑफ एयर, जैसे प्लेन मूव कर रहा है तो जो विंग है उसके ऊपर से भी एयर जा रही है, नीचे से भी एयर जा रही है. तो विंग का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करते हैं सो दैट स्पीड ऑफ एयर above the wing decreases, below the wing increases, above the wing increases and below the wing decreases. The pressure difference is lift off करता है प्लेन. तो अगर कार में भी विंग्स लगा दिए जाएं तो वो भी फिर फ्लाई करेगा. अगर बहुत स्पीड से अगर वो रन करता है, जस्ट फ्लाई. बट उसके बाद क्या होगा, यू नेवर नो, बिकॉज उसमें तो मोटर होती है जो उसको आगे की तरफ भी मूव करती है. बिकॉज एक बार जब लिफ्ट हो जाता है प्लेन तो वो आगे भी जाता है, ऊपर भी जा सकता है. और जब तुमने कभी नोटिस किया होगा, हाँ, जब नोटिस किया होगा कि जब उसको लैंड करते हैं ना तो वो उसको विंग में एयर स्ट्रीम को वो खोल देता है ताकि कुछ एयर विंग के बीच में से पास करती है. हाँ, तो फिर वो नीचे की तरफ आता है. अदर वो लैंड ही नहीं कर पाएगा, कभी ऊपर ही ऊपर जाएगा. हाँ, कार के पीछे स्पॉइलर लगा होता है ताकि वो एरोफॉइल स्ट्रक्चर बन जाए. कार में हमें उल्टा करना होता है. हमें वी डोंट कि कार लिफ्ट हो जाए, वी वांट द कार टू बी ऑन द ग्राउंड ऑल द टाइम. तुमने कार के पीछे देखा होगा स्पॉइलर होते हैं, इस तरह के लगे होते हैं कुछ कार में. तो ये रेयर साइड बता रहा हूँ मैं, इसको स्पॉइलर बोलते हैं. यहाँ व्हील होता है, ये वाला स्पॉइलर कहलाता है. तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है ताकि ना ऊपर की स्पीड कम रहे, नीचे की ज्यादा हो जाए, ताकि वो इट शुड बी ग्राउंडेड ऑल द टाइम. डायग्राम बना लो, फिर इसकी स्टोरी कौन लिखेगा, लिख लेते. इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ए इज द एरिया ऑफ टू विंग्स, कंबाइंड एरिया ऑफ टू विंग्स. अगर हम ईच एक विंग का एरिया ए लेंगे तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा मुझे.
ए इज एरिया ऑफ विंग, वन विंग। दो विंग है ना उसके, तो ट्वाइस कर देंगे। रुड़की में सिविल डिपार्टमेंट में एक क्या होता है, प्लेन की टेस्टिंग कैसे करते हैं? ये थोड़ी कि प्लेन बनाया और उसको आदमी को बिठा दिया, बेचारा वो टकरा गया मर गया। यू पहले प्रोटोटाइप बनते हैं। उन प्रोटोटाइप को बड़ी बड़ी वो होती हैं, हाँ, एयर टनल्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या, प्लेन को स्टेशनरी रखा जाता है। और एयर टनल का मतलब यू क्रिएट द ऑपोजिट सिचुएशन वेयर द विंड इज ब्लोइंग एंड द प्लेन इज स्टेशनरी, द सेम एज विंड इज नॉट ब्लोइंग, एयर इज एट रेस्ट एंड द प्लेन इज मूविंग। सेम सिचुएशन हो जाती है, फिर वहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो रुड़की में देर वॉज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा विंड टनल था। बहुत सारे इसमें यहाँ पे वो लगे हुए थे। हाँ, लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग तो की जाती है फिर भी। प्रोटोटाइप बना के हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। जैसे अभी नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट ना, वहाँ पे इसका टेस्टिंग हो रहा है पूरे सिस्टम्स का। तो बन गया डायग्राम, लिख लिया सारा? क्या लिखा? खुद से लिखा है, लिखवाऊं? खुद से लिखो। विंग्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट आर डिजाइन इन सच ए वे, लाइक दैट, ऐसे लिखो। खुद से लिखना है काव्या? सर आप ही बोलो दो। अरे मैं तो बोलते रहूंगा, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। ओके सर, खुद लिखो। सर हाउ प्लेन्स फ्लाई ना। नहीं, एयरफॉयल स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स, इसकी हेडिंग ये है। तो मैं चार्जर ले आऊँ लैपटॉप में। हम्म। मैं चार्जर ले आऊँ लैपटॉप को। चार्ज चार्जर ले आऊँ लैपटॉप को। खत्म हो गया? यस सर, होने वाली है। कोई बात नहीं, क्लास भी खत्म होना है तो इतनी देर तो लिख ही दोगे। तुम चार्ज खत्म क्यों करती हो मेरी क्लास के पहले ही? सर, हमेशा ये क्या? होता है। अरे एक तो तुम क्लास के पहले दोस्त के चली जाती हो और फिर चार्ज खत्म हो जाता है। सर नहीं, मैं निकल गई थी वहां से, मैं थोड़ा ट्रैफिक में अटक गई थी। अच्छा अच्छा।
लिख लिया? दिव्या सुनाओ। When the wings of an aircraft are given an aerofoil structure, the structure causes the velocity of wind above the wing to be higher than velocity of wind below the plane in accordance with Bernoulli's principle. P हम्म, plus half rho v square is constant. The pressure below the wing is much higher than pressure above the wing. This pressure difference creates an upthrust which gives an airplane a dynamic lift. ओके। शिविका। मैंने लिखा है wings of an aircraft are designed in such a way that the हम्म velocity above the wing is more velocity above the is uh wing is more and the pressure of the wing The नहीं velocity of क्या the पढ़ air दिया above the wing is more and below it is less. उसके बाद हाँ लिखो ये अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। इक्वेशन लिख दो। हाँ According to Bernoulli's theorem, pressure would be low at the top and it'll be higher at the below the wing, due to which there'll be a net pressure in the upward direction and net upthrust acting on the wing and the aircraft, which causes the plane to lift. ये भी इसमें मेंशन करना शुरू में कि when the plane moves on the runway, because अगर वो खड़ा रहेगा तो थोड़ी ऐसा होगा। काव्या। Airplanes are fitted with aerofoil structured wings created such that when the airplane is moving on the runway, velocity above the wing is more and below the wing is less. हम्म According to Bernoulli's principle, P plus half rho v square is equal to constant. Pressure below the wing due to lower velocity is more and causes the airplane to lift up. राइट। और बीच में कहीं बर्नौलीज का इक्वेशन लिख देना, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर एंड एफ नेट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तुमने क्या लिखा? इक्वेशन लिख दी ना ये वाली? ठीक है। लिख। क्या हुआ? वेंचुरी मीटर भी काट दिया है। हाँ क्या हुआ? वेंचुरी मीटर भी काट दिया है। सेंचुरी काट दिया, वो नेक्स्ट में वो बताने वाला था अभी। काट दिया है। अच्छा, स्प्रे पंप और एटमाइजर। वो है। ठीक है। सो फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एटमाइजर की स्पेलिंग क्या हुई? जेड जेड ATOMI जेड जेड ही आ ब्रिटिश ना? सर वो अमेरिकन ब्रिटिश का डिफरेंस हो गया क्या हुआ? अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश कोई से हिंदुस्तानी इंग्लिश में बताओ। वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है सो इट्स जेड जेड ई आर ओ आर। ओके। आई थिंक इट्स ER एटमाइजर। ठीक है। और स्प्रे पंप ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। देन आई स्टार्ट विद SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन। थर्मोडायनेमिक्स हम बाद में करेंगे, बिकॉज सम स्कूल दे वोंट बी डूइंग दिस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो इफेक्ट्स ऑफ करंट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ कुछ स्कूल में नहीं हो रहा ना, लाइक DPS दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओनली। वो मेरा मतलब फाइनल में भी नहीं आएगा। ना। ये कौन सी एनालॉजी है? हम्म। हमारे तो 15 चैप्टर आ रहे फाइनल में। तुम्हारे में मेहनती बच्चे हैं ना, तो उन्होंने बताया कि उनको पढ़ाना है ढंग से। नहीं, हमारा आधा ग्रेड फेल हो गया है। कोई बात नहीं, कुछ कम मेहनती हैं। So some school, and I mean, almost every school, they'll delete some portion. Like some will not teach kinetic theory of gases, some will not teach thermodynamics, some will not teach properties of matter. But SHM and waves सभी का आएगा, तो हम तो पहले common वाला कर लेंगे. Then I'll come back to this.
ठीक है, राइट देन एंडिंग द क्लास। Thank Thank you. you, sir. ओके, Thank you, शिविका sir. तुम मेरे को बोल देना कब टेस्ट भेजना है, ठीक है। ठीक है, sir. Thank you.